Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, today we are going to meditate Genesis 22:5, which is a very well-known verse. आज का दिन उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय 5 वचन जो हम सब जानते हैं, इस वचन पर अध्ययन करें। Why? क्यों ऐसा? Why it is important? क्यों इतना महत्व देने वाली For बात the है? first time in the Bible, the word worship is used in this verse. क्योंकि पहली बार आराधना ये शब्द ये बाइबल में यहाँ पर ये भाग में उसका उपयोग किया गया। Any word used for the first time in the Bible is that context is very important. बाइबल में जो कोई शब्द जो बात पहली बार वहाँ पर उसकी प्रस्तुत होती है, ये बहुत महत्व देने वाली बात। I am reading 22:5. 22 अध्याय के 5 वचन को मैं आप पढ़ रहा I हूँ। and the lad will go yonder and worship and come again to you. ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। This is a trial that is perhaps the hardest of all in the life of Abraham. अब्राहम के जीवन में सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा का समय था ये। In 22nd chapter of Genesis, उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय we all know में this is one of the most famous stories of the Bible. हम सब जानते हैं बाइबल में इतने मशहूर कहानियां घटनाओं में से ये एक बात है। Yeah, the story of Abraham offering Isaac as a burnt sacrifice. अब्राहम इसहाक को होम बलि चढ़ाने वाली ये घटना I think anyone can see in this account Abraham offering Isaac as a burnt sacrifice a remarkable foreshadowing of the Old Testament's incident which talks about the New Testament crucifixion of Lord Jesus Christ. अब्राहम इसहाक को बलि चढ़ाने वाली ये बात हम सब जान सकते हैं यहाँ पर, जो कुछ समय के बाद में परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस प्रकार से होम बलि चढ़ाने वाला एक छाया के रूप में ये जो पुराने नियम की बातें यहाँ पर लिखी In the case of Abraham, अब्राहम के विषय में when nobody is seeing, जब कोई नहीं देख रहा one था, side his heart was breaking, एक तरफ से उसका मन टूटा हुआ था and he is binding his son and putting on the altar to offer as a burnt sacrifice. अपने पुत्र को वो बांध कर और वो वेदी पर होम बलि चढ़ाने के लिए वो सिद्ध हो गया। Same thing happened after hundreds of years later, कुछ 100 साल बाद में यही घटना हुई है, when God sent his son and also to the Calvary's mountain, yes, only for this purpose. जब परमेश्वर अपने पुत्र को उस कलवरी के पहाड़ पर भेजा था, केवल ये उद्देश्य से भेजा है। Yeah, let us see this incident carefully, especially how we can apply these things to our hearts. और ये घटना को हम अच्छी तरह से हम देखेंगे किस प्रकार से ये हमारे हृदय में इन बातों को हम वास्तव में ले सकते So हैं। when we see the life of Abraham from these incidents, ultimately God called Abraham as the father of faith. अब्राहम के जीवन में हम ये घटना को लेकर देख सकते हैं, परमेश्वर ने उसको अब्राहम को ये तो विश्वासों का पिता ऐसा कहलाया। Similar things may happen in our lives. और इसी प्रकार की बातें हमारे जीवन में भी हो So सकती let है। us learn some instructive lessons from this incident. और ये घटना से कुछ सूचनाएं देने वाले बातों को सबक को हम सीखेंगे। In chapter 22, we come to the story of Abraham's greatest trial. 22 अध्याय में अब्राहम के जीवन में बहुत बड़ी परीक्षा का समय है, उसको देखते हैं। This is the incident of deepest thrust of the cross in his life. ये उसके जीवन में एक क्रूस का गहराई का काम हो रहा है ऐसा लगता है, Because it was the cross, work of the cross in the life of Abraham. क्योंकि अब्राहम के जीवन में ये क्रूस का काम था, इसीलिए That's why we can see the experience of Gethsemane in his life. उसके जीवन में गेत्सेमने के अनुभव को हम देख सकते We हैं। can see the experience of Golgotha, the cross in his life, फिर Calvary. गोलगोता का अनुभव जो कालवरी का क्रूस है उसको देख सकते And हैं, even we can see the experience of resurrection in his life. और फिर उसके जीवन में पुनरुत्थान के अनुभव को भी हम देख सकते So हैं। it is helpful to know the context of this story. अब तो ये जो घटना ये कहानी है, वो संदर्भ को देखना हमारे लिए बहुत सहायक होता है। Approximately 20 years are passed between chapter 21 and chapter 22 of Genesis. उत्पत्ति के 21 और 22 अध्याय के दरमियान लगभग 20 साल हो चुके हैं। Last time we saw Abraham in a tent in Beersheba with his son Isaac. पिछली बार हमने देखा है अब्राहम ने बेरशेबा में इसहाक के साथ वो डेरे में रहता था, There he built an altar. वहां पर एक वेदी को He बनाया, worshipped the Lord. वहां पर परमेश्वर को दंडवत He किया, called the name of the Lord as everlasting or unchangeable God. वहां पर परमेश्वर को यह नाम दिया, ये ना बदलने वाला हमेशा रहने वाला परमेश्वर। So for the last 20 years, Isaac became the center of their happiness and they were so blessed by seeing Isaac. पिछले 20 साल तक भी अब्राहम के लिए, उसके परिवार के लिए इसहाक जो आनंद का कारण बना हुआ था। Isaac means laughter.
इसाक नाम का मतलब ये है हंसी है। Yeah, truly he brought great delight and smile or laughter to his parents. सचमुच में अपने जीवन में अपने माता पिता को वो खुशी बांटा है। So the whole family was playing or being delightful around this little boy till he came to the manhood. तो उसका सारा परिवार भी ये लड़का ये बालकपन से जब बढ़ता था उस समय तक उनको बहुत खुशी मिलती थी। So suddenly a thunderbolt like word came from heaven to the ears of Abraham. अब अचानक से आसमान से अब्राहम को एक बात उसके कान में सुनाई दी, एक गरजने वाली बात सुनाई दी। Abraham can hardly believe his ears. अब्राहम ने उसको वो सोच भी नहीं सकता था, ये भरोसा नहीं कर सकता Yeah, था। what God is telling. क्या बोलता है परमेश्वर? Now take your son Isaac, बोलता है कि तेरा बेटा इसहाक को लेकर जा, your only son whom you are loving. तेरा एकलौता पुत्र है जिससे तू प्रेम करता Go है, to the Mount Moriah. और मोरिया पर्वत पर लेकर जाना Offer him है। as a sacrifice to me on the mountain. वहां पर उस पर्वत पर इसको होम बलि चढ़ाना है। In spite of severe heartache in the life of Abraham, अब्राहम के जीवन में इतना मन टूटने वाला ये घटना, ये दृश्य there था, was a great fight in his heart. और उसके जीवन में बहुत एक लड़ाई, एक युद्ध का परिस्थिति था। Yet he obeyed and took Isaac to offer him as a burnt offering. फिर भी इसहाक को होम बलि चढ़ाने के लिए वो परमेश्वर का आज्ञाकारी बन के गया, And he calls that act as worship. और वो काम को, उस क्रिया को उसने आराधना कहता है। So from this we can see some of the important truths about worship. और ये घटना से आराधना के सिलसिले में, आराधना के बारे में कुछ महत्व देने वाली बातों को हम सीख सकते हैं। Yeah, Abraham considered this act as worship. और ये जो क्रिया उसने किया है इसको वो आराधना बोलता है। 6 to 7 lessons we are going to see from this portion और ये भाग से हम कुछ 6 या 7 बातों को हम सीख सकते about हैं worship. आराधना के बारे में। First of all, पहली बात है, worship is an action. आराधना है जो ये क्रिया है, इसमें काम रहता It है, is something we do. ये जो हम कुछ करने वाली बात है। See, some of the people they will say the whole life is a life of worship. कुछ लोग बोलते हैं सारा जीवन हमारा आराधना से भरा हुआ है, Whatever we do, it is worship. हम जो कुछ भी करते हैं वो तो आराधना ही Oh, है। such is not the case. नहीं, ऐसा नहीं होता है। Worship is an activity we engage in with an eye toward pleasing God. आराधना ऐसा काम है जो वो काम हम वो करते हैं वो परमेश्वर की दृष्टि को तृप्ति देती है। Eating lunch is not worship. खाना खाना ये आराधना नहीं होता है, Breathing is not worship. सांस लेना आराधना नहीं होता है, And seeing cricket match is not worship. क्रिकेट मैच देखना ये आराधना नहीं Many होता है। people they see the serials in the TVs, that is not worship. बहुत सारे लोग टीवी में सीरियल देखते, वो आराधना नहीं Don't होता think है। that the whole life is worship. तो हमारा सारा जीवन आराधना ऐसा नहीं Don't सोचना be है। misguided by that. वो इस प्रकार से आप गलत रास्ते में नहीं जाना है। Worship is an action. आराधना है, एक क्रिया है वो। You are involved with your heart and soul and body. यहाँ पर आपका मन है, आपका हृदय, आपका शरीर, ये सब ये आराधना में लगा And रखता है। secondly, दूसरी बात, worship demands revelation. आराधना के लिए दर्शन होना In चाहिए। chapter 22 verse 2, 22 अध्याय के दूसरे वचन में God gave the instructions to Abraham how to please him. कैसे परमेश्वर को तृप्त करना है, परमेश्वर अब्राहम को इस बारे में सूचनाएं दी है। Because we cannot know how to worship, क्योंकि कैसे आराधना करना है हम नहीं जानते, how to give love and devotion towards God, we do not know. कैसे परमेश्वर से प्रेम करना है, कैसे परमेश्वर के प्रति भक्ति रखना है हम नहीं जानते। God has to tell us in which he is pleased. परमेश्वर ने किन बातों से वो तृप्त हो सकता है वही हमको बताना And चाहिए। when he tells us, we cannot ignore those instructions, however difficult they are. जब वो हमको बताता है, हो सकता है कितना मुश्किल है, कठिनाई है, लेकिन हम उसका आज्ञाकारी बन सकते So हैं। worship demands revelation. आराधना के लिए दर्शन होना चाहिए। Thirdly, तीसरी बात, worship demands preparation. आराधना के लिए तैयारी भी होना है। In verse 3, तीसरे वचन Abraham में, rose up early in the morning और अब्राहम ने प्रातःकाल से उठा है and he got all the needed things to worship God. और परमेश्वर की आराधना के लिए जो कुछ भी उसको होना था Oh, the उन सबको लिया है। the sword और वहां पर तलवार को, And also छुरा the को लिया है wood. और लकड़ी को भी लिया है and the fire. और फिर आग लिया है। So attention in worship to God is never haphazard. It needs preparation. Casually you cannot worship. सो आराधना की तैयारी में जैसे हम मन मर्जी नहीं कर सकते, उसके लिए पूरी तरह से तैयारी होना चाहिए। It is something we ought to think about and get ready for. ये ऐसा होता है ना, हम कुछ बात के लिए हम तैयार होना है, उसके लिए उठकर जाना है। When Mary came to know that Christ is coming to Bethany, जब मरियम ने ये जान लिया था कि प्रभु
प्रभु ने बेतनी को आ रहा था, when she wanted to worship the Lord, जब वहां पर वो परमेश्वर की आराधना करना चाहती थी she came prepared. और उसने पूरी तरह से तैयार होके आई थी। After seeing Jesus Christ, she have not gone to the bazaar and brought the alabaster box. यीशु के आने को देखकर उसके बाद में वो बाजार जाकर और उस कीमती इत्र को लाने के लिए नहीं गई वो, Came with alabaster box, she came prepared. और इत्र की शीशी को लेकर वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। So thirdly, it demands preparation. और तीसरी बात है, इसके लिए मतलब आराधना के लिए हम तैयारी होना है। And fourthly, चौथी बात है, worship demands a separation. आराधना के लिए हमारे अलगाव का जीवन होना Verse चाहिए। 6 says, 6 वचन में लिखा, Abraham and Isaac separated themselves from those who might have distracted them from coming before God and obeying him. अब्राहम और इसहाक ने उन लोगों से अलग होकर जा रहे जो कि आराधना करने से रुकावट बनते हैं, उन सबों को छोड़कर अलग जीवन में जा रहे हो। Some people may be very dear to you, कुछ लोग हो सकता है आपके बहुत प्रिय माने जाते हैं, but at the time of worship, they will distract you. लेकिन आराधना का समय जब आता है ना, आपकी दृष्टि को बदल देते हैं After all, लोग। those people are Abraham's servants. वो तो अब्राहम के नौकर लोग थे। And they will be helping Abraham if the Abraham wanted to tie Isaac. अगर चाहता था अब्राहम तो इसहाक को बनने के लिए ये नौकर लोग आके उसकी मदद कर सकते हैं, But he separated himself. लेकिन अपने आप को उन्होंने से अलग कर लिया Do है। you know why? क्यों? आप जानते हैं Though they क्यों? are very close to him, though they are his servants, क्योंकि ये लोग उसके बहुत करीब रहने वाले हैं, हो सकता है ये अब्राहम he के has नौकर है, separated himself and Isaac from those people. और वो अपने आप को और फिर इसहाक को उन लोगों से अलग कर दिया। Imagine what has happened. सोचिए क्या होगा होगा, Say, what would have happened? क्या हो सकता था? Suppose if Abraham have taken those servants यदि अब्राहम उन नौकरों को भी अपने साथ ले जाता, as worship when Abraham wanted to offer Isaac, जिस प्रकार से अब्राहम ने आराधना में मतलब इसहाक को बलि चढ़ाते रूप में आराधना करना चाहता था, and at that time, उस समय में if the servants are there, यदि नौकर वहां पे मौजूद होते then what they would have तो done? वो लोग क्या करते थे? They would have thought that Abraham became mad. वो सोचते थे क्या हो गया अब्राहम, ये तो पागल हो गया क्या? Why he is doing like that? क्यों ऐसा काम कर रहा है ये? So they would have they would have stopped Abraham killing Isaac हो सकता था अब्राहम इसहाक को मारने से वो लोग रोकते थे। many times कई बार in our lives. Also. हमारे जीवन में भी However dear they may be, हो सकता है आपके बहुत ही प्रिय लोग हो oh, सकते हैं when वो you लोग। are worshiping the Lord, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, sometimes unknowingly they will become a hindrance. कभी कभी हम बिना जानते हुए ये लोग हमारे रुकावट बन सकते हैं। You must separate yourself. आप अपने आप को उन लोगों से अलग कर लेना Simple चाहिए। example. एक छोटा सा उदाहरण, When you want to worship in a room जब आप एक कमरे में आराधना करना चाहते हैं, and when you want to worship very faithfully, जब आप विश्वास योग्य बन के आराधना करना your चाहते हैं, family members in the other room, they will be watching the TV and the sound of the TV itself is a great disturbance for you to worship the Lord. आपके ही परिवार के लोग दूसरे कमरे में से टीवी का इतना आवाज बढ़ा रख देते हैं, तो उसके वजह से आपके आराधना की बहुत रुकावट हो सकती They may be very close people, maybe husband or wife or your loving children. है। हो सकता है वो आप ही के लोग हैं, जो आपका पति या पत्नी हो सकता है, फिर आपके बच्चे भी हो सकते हैं। So that's why worship demands separation. इसीलिए आराधना ये ऐसी बात है ना, हम पूरों से अलग होना चाहिए। So worship involves action यहाँ पे हम देखा है आराधना में क्रिया होना चाहिए, and it involves revelation. आराधना में दर्शन होना चाहिए, It involves preparation. आराधना में तैयारी होना It चाहिए, involves separation. आराधना में अलगाव का जीवन होना And चाहिए। fifthly, और पांचवी बात worship है, requires dedication. आराधना को समर्पित का जीवन चाहिए। Yeah, how must Abraham have felt when he heard the command of God in verse 2? और दूसरे वचन में जो परमेश्वर की आज्ञा अब्राहम को पहुंची थी, वो क्या सोचा था? Was he really supposed to love this God? क्या सचमुच में ऐसे परमेश्वर से प्रेम करना है? He has given promise and gave the son. उसी ने तो मुझे प्रतिज्ञा की है और बेटे को दिया And है, so many promises he made. बहुत सारे प्रतिज्ञाएं भी और भी की है And उन्होंने। today he is asking to offer that son. और फिर आज वही पुत्र को होम बलि चढ़ाने के लिए बोलता है। Yeah, brothers and sisters, और भाई और बहनों, it needs dedication. इसके लिए ना आराधना के लिए समर्पित जीवन होना चाहिए। Yeah, see, with human terminology, he would have left God मानव- because God asked him to offer Isaac. मानव रीति से यदि हम सोचे, दृष्टि से सोचे, हो सकता है जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि इसहाक को बलि चढ़ा, तो अब्राहम ने परमेश्वर को छोड़ के जा सकता था। So let what may happen, चाहे जो कुछ भी हो जाए, I want to be a dedicated child of God. मैं तो परमेश्वर के लिए एक समर्पित संतान बनकर रहना चाहता So we must be more devoted to him than anything else we can imagine. हूं।
फिर हम जो कुछ भी हो सकता है, जो कुछ सोचते हैं, इन सबों से अधिक तरह से हम समर्पित जीवन हमको रहना चाहिए। Though it is tough, ये बहुत कठिन हो सकता है, true worship means, yes, letting go and sacrificing everything to God. लेकिन सच्ची आराधना ये है कि जो कुछ भी हो उसको बलि चढ़ा के हम परमेश्वर को तृप्त करना है। Sacrifice your time, your energy, your money, your everything. अपने समय को त्याग देना है, पैसा त्याग देना है, शक्ति सामर्थ हर चीज को त्याग देना हो। Oh, many times, many times. कई बार होता है ना, Yeah. Why you have not come to the worship? Suppose if we ask, यदि हम पूछें भाई आप क्यों आराधना के लिए नहीं आते हैं, I am tired, brother. बोलते भाई हम बहुत थके हुए हैं Last night duty. और फिर हम पिछले रात भर हमने नौकरी की है। Oh, brothers and sisters. भाई और बहनों, Abraham is offering his only son. अब्राहम अपना इकलौता बेटा को बलि चढ़ाता है यहाँ। That's why devotion is important. अरे इसीलिए है ना, यहाँ पर हमारा समर्पण का जीवन होना Yeah, चाहिए। last night you worked, no doubt. हो सकता है आपने पिछले रात में नौकरी की है, बहुत काम मेहनत किया है, But today, if you have to go to any other place for a marriage or some other function, Like- won't you get up? लेकिन ऐसा हो सकता है कि आज आपको कुछ शादी में जाना है या फिर कुछ कार्यक्रम में, कोई फंक्शन में जाना है, क्या आप नहीं जाएंगे? Has God become so cheap in your life? क्या परमेश्वर आपके जीवन में इतना छोटा हो गया क्या? Dedication is important. समर्पण होना चाहिए। And sixthly, छठवीं बात, worship results adoration. आराधना में हम उसकी बढ़ाई करते हैं। In verses 13 and 14, 13 और 14 वचन, once his hand stayed from killing his son, जब वो अपने बच्चों को मारने के लिए हाथ उठाया तो तब उसका हाथ रोक दिया था। Abraham offered up a ram in worship to God. अब्राहम ने परमेश्वर की आराधना में एक मेमने को बलि चढ़ा दिया। Now what I want to tell is, अभी मेरा ये कहने का ये है, just 5 minutes ago, एक 5 मिनट पहले his heart was full of tears. इसका हृदय, इसका मन बहुत दुख से भरा हुआ था। When his hand was stopped, जिस समय उसका हाथ रोक दिया गया था, suddenly when he saw the ram, अचानक से जब उसने एक मेमने को देखा, and when he was killing that ram in the place of Isaac, जब इसहाक के जगह में उसके बदले में मेमने को बलि चढ़ा रहा था, think how happy his heart must have been in that moment. सोचिए उस क्षण में, उस समय में इसका हृदय कितना आनंद से भरा हुआ था होगा। Adoration flowed from Abraham. अब्राहम के जीवन से परमेश्वर की बढ़ोतरी करना उसके उमड़ के आ रहा था उसमें। What a joy, और कितना आनंद है ना, uncontrollable joy, और उसको तो वो नियंत्रण भी नहीं कर सकता था, उतना unspeakable आनंद है। joy. हाँ, वो वर्णन से बाहर है जो आनंद था उसका, So wonderful joy. और बहुत ही अद्भुत आनंद था। God stopped his hand. परमेश्वर ने उसके हाथ को रोक दिया, God has shown the ram. परमेश्वर ने उसको मेमने को He kept the बताया ram there, और वो मेमने को वहां पर रखा, offering there. उसको बलि चढ़ाता है। Isaac is standing beside him. इसहाक उसके बाजू खड़ा हुआ है, The joy in the heart of Abraham you cannot measure. और जो अब्राहम के हृदय में, मन में आनंद था, ये बिल्कुल वर्णन के बाहर था। Adoration flowed from Abraham. अब्राहम के जीवन से ये जो आराधना का जीवन है, जो उसको परमेश्वर को बढ़ाना है, उसके जीवन से उमड़ के निकला है। When you are worshipping the Lord, that experience must be there. जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं ना, ऐसे प्रकार का अनुभव होना चाहिए। When we consider what we have gained from God through Christ, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर से हमने जो प्राप्त किया है, हमने जिसको पाया है, यदि हम उसको सोचेंगे, how much we have forgiven and how much we are loved today. हाँ, कितना वो हमको माफ कर दिया है, हमसे कितना प्रेम किया है उसने। All those things must make you have you a heart of overflowing joy. ये सारी बातें हमारे हृदय में से ये आनंद उमड़ के आना, ऐसा जीवन होना चाहिए। So from Genesis 22:5, उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय के 5 वचन we are से seeing 6 important truths about worship. आराधना के बारे में हम 6 महत्व देने वाली सच्चाइयों के बारे में हमने मनन किया है। Worship involves action आराधना में क्रिया होना चाहिए, and it involves revelation. आराधना में दर्शन मिलना It चाहिए, involves preparation. आराधना के लिए तैयारी होना It चाहिए, involves separation आराधना के लिए अलगाव का जीवन होना and it है, involves dedication. आराधना के लिए समर्पित जीवन होना चाहिए, And worship involves adoration. आराधना में हम परमेश्वर की बढ़ोतरी करना चाहिए। That is the way in which you and I are expected to worship. और इस प्रकार से हम परमेश्वर की आराधना करना ये चाहते We हो, have to worship the Lord in spirit and in truth. आत्मा से और सच्चाई से हमारे परमेश्वर की आराधना करना है। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, worship is the highest ministry that we can do unto Thee.
आराधना प्रभु जो सबसे अधिक है जो हम आपके लिए कर सकते हैं, Not only that, ना केवल it is इतना, the eternal ministry. ये तो प्रभु हमेशा की सेवकाई है ये। All the other ministries will end by the time we go to the grave. बाकी सब प्रकार की सेवकाई है जिस समय प्रभु हम कब्र में जाते हैं, Lord, जब समाप्त हो जाता है। We thank thee for teaching unto us how we have to worship the Lord. और प्रभु हम किस प्रकार से हम प्रभु की आराधना करना है हमें सिखा रहे हैं, धन्यवाद देते Worship involves action. हैं। आराधना में क्रिया होती है, Worship involves revelation. आराधना में दर्शन भी होना है, Worship involves preparation. आराधना के लिए तैयारी होना है, Worship involves separation. आराधना के लिए अलगाव का जीवन होना है, Fifthly, worship involves dedication. आराधना के लिए समर्पित जीवन होना And चाहिए, also, worship involves adoration. आराधना में परमेश्वर की बढ़ोतरी करना है। Help us to be true worshippers. अब ये सच्चे आराधना करने वाले हमको बनाइए। In Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना को चढ़ाते सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।